Hello students, let's continue with metals and non-metals. In the previous class, we were discussing about the physical properties of metals as well as non-metals. Now, we'll be discussing about the chemical properties of metals and non-metals. See children, in this chemical properties, we have to study the reaction of metal with oxygen, then reaction of metals with water we have to study, then reaction of metal with acid, then reaction of metals with other non-metals. Like this, these chemical properties we have to study. Okay, but before moving on to the chemical property of metals or non-metals, we must know that how the metals is going to react with oxygen, water, acid, non-metals, right? Now, which metal will react very fast or which metal will react slow? So, all these things we must know. Now, how can we know that which metal is more reactive or which metal is less reactive? How can we know that? See here, we have a series called as the reactivity series. Okay, there is a series of metals, that is reactivity series. See here, we have a reactivity series of metals in which the metals are arranged according to their decreasing order of their reactivity. You can take down the definition of reactivity series. It is the arrangement of metals in order of their decreasing reactivity downward. Okay. Now see here, reactivity series, it is the arrangement of metals in order of their decreasing reactivity downward. Now, I'll write the sequence of the metals, I'll write on the side the sequence of the metals in the reactivity series. Just see here, the first and the topmost element or the metal, it is potassium, sodium, then calcium, then it is magnesium, then it is aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver and gold. Okay, now just you see here, this is the sequence of the metals in the reactivity series. Now as you move down the reactivity series, the reactivity of the metal decreases. See here, this is the decreasing reactivity. Okay, so the topmost metal is it is the potassium. So this potassium will be most reactive, है ना, क्योंकि पोटेशियम एकदम टॉप में है, सीरीज के सबसे टॉप में क्या है, पोटेशियम है. अभी ये तो मैंने सिंबल लिखा है, ये सिंबल जो है K फॉर पोटेशियम, Na सोडियम, Ca कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, copper, mercury, then silver and gold. Okay, so this is the sequence. The topmost metal, it is the most reactive, that is potassium. So obviously this metal, that is gold, it will be least reactive. So this is the reactivity series of metal. Now potassium is most reactive. Sodium is also very reactive metal, but it is less reactive than potassium. Then calcium is also a reactive metal, but it is less reactive than sodium. Magnesium is less reactive than calcium. Okay, if we compare between magnesium and zinc, then which one will be more reactive and which one will be less reactive? Magnesium, it will be more reactive as compared to the zinc. Similarly, between aluminium and iron, which one will be more reactive?
Aluminium will be more reactive as compared to the iron. Okay, so this is the reactivity series in which the reactivity of the metal decreases as we move downward. Okay, now let's come to the reaction of first chemical property of metal. इसे हम ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि इसी पे बेस जो है हम लोग विल स्टडी दी केमिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, अच्छा. फर्स्ट लेट अस सी द reaction of metals with oxygen. ठीक है, reaction of metals with oxygen. Metals generally they react with oxygen to form metal oxide. So metal reacts with oxygen. We can write like this: metal they react with oxygen to form metal oxide. Right? They react with metal to form metal oxide. Let us take an example. Potassium. Potassium is the most reactive metal in this series. Okay. Now, when this potassium reacts with oxygen, it forms potassium oxide. When potassium reacts with oxygen, it forms potassium oxide. Now, let us summarize the equation. Let us summarize this in the form of chemical equation. Potassium plus oxygen O2 will give K2O. This is potassium oxide. K for potassium, O oxygen, and K2O, it is potassium oxide. Now, just see here, the valency of potassium is 1, valency of oxygen is 2. You cross the valency, you get this formula K2O. Now, see here, potassium is very reactive, it is highly reactive, and the reaction of potassium with oxygen, it releases a large amount of energy, and this reaction is highly exothermic. This reaction takes place at room temperature because since it is very reactive and it is this reaction may be very violent and lot of heat is evolved in this process. Okay, in this reaction. So, you get the product as potassium oxide and this reaction takes place at room temperature. Now, let us take the second metal, sodium, which is less reactive than potassium. Sodium is less reactive than potassium, but sodium is also very reactive. It is highly reactive. The reaction is very violent. It is highly exothermic, and lot of heat energy will be liberated during this process. So, we will take next example is sodium. Na sodium reacts with oxygen O2 and it forms sodium oxide Na2O. It forms sodium oxide, that is Na2O. Again, sodium, the valency is 1. Oxygen, the valency is 2. You cross it, you will get Na2O. Okay. Right. This reaction will also take place at the room temperature. Now, let's pick up another metal from the series, that is calcium. Now, let us react this calcium with oxygen. Now, calcium is less reactive than, you can see here, potassium and sodium is more reactive than calcium. Calcium is less reactive than potassium and sodium, but it is also an exothermic reaction and it will also release energy, but the reaction is not very violent. Okay. Now, to bring about the reaction between calcium and oxygen, we have to slightly heat it. Okay, we have to slightly heat it to see the immediate reaction between calcium and oxygen. तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसे हम जो है will slightly heat. ठीक है, करेंगे, then we will get the product as CaO, that is calcium oxide. We will get calcium oxide. Now, how this formula? How can you frame this formula? Just see here, valency of calcium is 2, valency of oxygen is also 2. Cross it, you will get CaO. Okay. So, this is how you write the chemical formula. So, that is why I told you in the previous classes also, this valency is very important.
And how can you know what is the valency of a particular element? Then for that you should know the electronic configuration, and to know the electronic configuration you should know the atomic number of any element. So atomic number of element, please remember it, learn it, it is very important. ठीक है, तो नेक्स्ट एलिमेंट अब हम ले लेते हैं, मैग्नीशियम ले लेते हैं. ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? मैग्नीशियम. मैग्नीशियम प्लस oxygen O2, it will give MgO, that is magnesium oxide. Magnesium plus oxygen, it will form magnesium oxide, that is MgO. Now see here, in this case also you have to heat, slightly heat. ठीक है, the magnesium is slightly heated in the presence of oxygen and it forms the oxide of magnesium, that is magnesium oxide. Okay, now let's come to the next metal in the reactivity series, that is aluminium. Now aluminium is less reactive. Aluminium, zinc, iron, these are less reactive elements. Okay, these are less reactive metals. So I will rub this. Next, aluminium. When aluminium reacts with oxygen, see here, when aluminium reacts or to bring about the reaction of aluminium with oxygen, we have to strongly heat it. Here we have to supply strong heat, strongly heat. इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा? क्योंकि एल्यूमिनियम जो है वो लेस रिएक्टिव है, इसीलिए एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के लिए हमें एल्यूमिनियम को स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा. ठीक है, जब हम इसे स्ट्रांगली हीट करेंगे देन वील गेट द प्रोडक्ट एज Al2O3, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड. एल्यूमिनियम ऑक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड. ये फॉर्मूला कैसे बना? एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, दोनों को क्रॉस कर दो, यू विल गेट द फॉर्मूला Al2O3. इस तरह से हम लोग फॉर्मूला बनाते हैं. ठीक है, तो ये हो गया हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आपने इसे स्ट्रांगली हीट किया है. फिर अब नेक्स्ट केस में हम आ जाते हैं जिंक. लेट अस टेक द अनदर, लेट अस पिक अप दिस मेटल जिंक. ओके, जिंक. जिंक को जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तब भी हमें इसे स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा. वी हैव टू हीट इट, इसे हमें स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम, जिंक हो गया, आयरन हो गया, ये थोड़े लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं. ठीक है, तो हमारा प्रोडक्ट यहाँ में क्या मिलेगा? ZnO, जिंक ऑक्साइड. प्रोडक्ट क्या मिला हमें? ZnO, जिंक ऑक्साइड. अब जिंक ऑक्साइड कैसे बन गया? ये फॉर्मूला, जिंक की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, दोनों को क्रॉस कर दो, बन गया हमारा ZnO, जिंक ऑक्साइड. ठीक है, अच्छा ये हो गया जिंक. अच्छा, अब हम देखते हैं आयरन, Fe ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करेगा. ठीक है, अब जो आयरन मेटल है, आयरन मेटल जो है जनरली जो है उसे कितनी भी हीट प्रोवाइड करो लेकिन वो जो है बर्न नहीं होगा. आयरन का जो मेटल है वो बर्न नहीं होगा. अगर आयरन का हमें ऑक्सीडेशन देखना है, उसका हमें अगर ऑक्सीडेशन प्रोसेस देखना है कि हाउ आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, देन इंस्टेड ऑफ आयरन मेटल वी हैव टू टेक आयरन फाइलिंग्स. वी हैव टू टेक आयरन फाइलिंग्स, यानी कि जो पाउडर होता है, आयरन का पाउडर जो होता है, आयरन फाइलिंग्स, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं आयरन के, वो हमें लेना पड़ेगा. तो अगर हम आयरन फाइलिंग्स की, आयरन मेटल की जगह हम लोग आयरन फाइलिंग्स लेंगे, छोटे छोटे पाउडर की तरह होगा, जिंक आयरन का ये पाउडर टाइप होगा. इसकी जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा, स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे इसे भी. ठीक है, तो ऐसे केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा Fe3O4. हमारा प्रोडक्ट क्या होगा? Fe3O4. ठीक है, अब यहाँ देखिए, आयरन की जो वैलेंसी होती है, आयरन की 2 वैलेंसी होती है. आयरन की वैलेंसी 2 भी हो सकती है, या जो आयरन की वैलेंसी है वो 3 भी हो सकती है. ठीक है, अच्छा, जब आयरन अपना ऑक्साइड, सपोज आयरन ऑक्साइड अभी हमें बनाना है, ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड बनाने के लिए इफ़ वी कंसिडर द वैलेंसी ऑफ आयरन एज 2, अगर हम आयरन की वैलेंसी 2 मान के चलते हैं और ये कंपाउंड, ये कौन सी कंपाउंड बना रहा है? ये बना रहा है आयरन ऑक्साइड. ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होगी.
अगर हम आयरन की वैलेंसी 2 कंसीडर करते हैं तो आयरन ऑक्साइड का फॉर्मूला हो जाएगा FeO, 2 कैंसिल हो गया FeO। अगर हम आयरन की वैलेंसी कंसीडर करते हैं, आयरन की वैलेंसी हम 3 कंसीडर करते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन की तो 2 ही होगी, फिर क्रॉस कर दो तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fe क्या हो जाएगा, Fe2 और O3 बन जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो अच्छा, तो अगर हम ये दोनों कंपाउंड को, ये दोनों ऑक्साइड्स को जब हम कंबाइन करते हैं, ये दोनों ऑक्साइड्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या मिल गया, O कितना हो गया, O4 हो गया, और Fe कितना हो गया, 3। तो इसीलिए जब आयरन फाइलिंग्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया जा रहा है तब उसका हमारा जो प्रोडक्ट, जो आयरन ऑक्साइड बनेगा, उसका नाम क्या होगा, Fe3O4, है ना, Fe3O4 होगा। और देखो, अगर हमारा कंपाउंड FeO है तो हम इसे बोलते हैं आयरन 2 ऑक्साइड। क्या बोलते हैं हम इसे, आयरन 2 ऑक्साइड। जब इस तरह का कंपाउंड हमारा मिला तो ये है हमारा आयरन 3 ऑक्साइड, ठीक है। और इसे हम क्या बोलेंगे, आयरन 2,3 ऑक्साइड, आयरन 2,3 ऑक्साइड, ठीक है। तो पता चला आप लोगों को ये Fe3O4 हमने क्यों लिखा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग और एक रिएक्शन, और एक देख लेते हैं, हम लोग मेटल की रिएक्शन, कॉपर ले लेते हैं अभी, ठीक है। कॉपर जो है वो और भी कम रिएक्टिव है एज कंपेयर टू दीज मेटल्स। उनके ऊपर जितने भी मेटल्स है, अभी देखो कॉपर यहाँ है रिएक्टिविटी सीरीज में, दिस शोज दैट कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन ऑल दीज मेटल्स विच आर प्रेजेंट अबाउट दिस, ठीक है। कॉपर इन सभी मेटल से कम रिएक्टिव है जो इनके ऊपर है, ठीक है। अब कॉपर की रिएक्शन देखते हैं क्या होगा। अगर कॉपर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो इसे भी तो हमें हीट तो करना ही पड़ेगा। जब सबको हमने हीट किया है, ये तो इतना लेस रिएक्टिव है, इसे तो हीट करना ही पड़ेगा। अच्छा, जब हम कॉपर को हीट करेंगे तो क्या होगा, इसके लिए एक स्टैंड बनाते हैं हम। कॉपर की वायर को ये स्टैंड में ले लेते हैं हम लोग। ये देखो, हमने यहाँ बनाया एक स्टैंड, ठीक है। इन दिस स्टैंड वी विल अटैच अ कॉपर वायर को हम यहाँ पे प्लग करते हैं। ये कॉपर की वायर है सपोज, ठीक है, ये कॉपर की वायर होगी। अब हम क्या करेंगे, ये कॉपर की वायर को हीट करेंगे। विद द हेल्प ऑफ अ बर्नर वी विल हीट दिस कॉपर वायर, है ना। इसको हम थोड़ा हीट करते हैं। जब हम इस कॉपर वायर को हीट करेंगे तो व्हाट वी विल ऑब्जर्व दैट काफ़ी देर तक हीट कंटिन्यूसली हम लोग थोड़ी देर करते रहेंगे ना, तब हमें यहाँ पर एक ब्लैक कलर की लेयर दिखाई देगी। जिस पोर्शन में आप हीट कर रहे हो वहाँ आपको एक ब्लैक कलर की लेयर दिखाई देगी, ठीक है। ये ब्लैक कलर की जो लेयर बनी है ये है आपका कॉपर ऑक्साइड। ये है आपका लेयर जो ब्लैक कलर की बनी है, ये है कॉपर ऑक्साइड। इसीलिए कॉपर ऑक्साइड जो हम बोलते हैं वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। कॉपर की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, दोनों को क्रॉस कर दो, क्या हो गया, CuO। इस तरह से कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। सो दिस इज रिगार्डिंग द रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। तो हम बोल सकते हैं कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म कर रहे हैं। और यहाँ देख लो, ये जो सिल्वर है, गोल्ड है, ये जो है बिल्कुल भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। एट एनी कंडीशन दे विल नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन। और ये जो मेटल्स है, जैसे कि हमारा मैग्नीशियम हो गया, ये हमारे लैब में रहता है ना, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रहता है लैब में, हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। तो ये मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जिंक हो गया, ये जो मेटल्स होते हैं ये जो है दे रिएक्ट with the oxygen present in the atmosphere and they form a oxide layer over their surface, ठीक है। ये मेटल्स के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है which prevent them from further oxidation, और further oxidation से उसे रोकती है। तो हम लोग क्या करते हैं, सैंड पेपर लेके when we rub the surface of मैग्नीशियम हो गया या एल्यूमिनियम हो गया या जिंक हो गया, उनकी सरफेस को जब हम जो सैंड पेपर से जब रब करते हैं तो वो ऑक्साइड लेयर जो है रिमूव हो जाती है। उसके बाद दैट मेटल इज रेडी फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। आप लैब में भी आपने देखा होगा, जब भी हम मैग्नीशियम रिबन बर्न करने वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से थोड़ा सा रब करके उसकी ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करते हैं।
ठीक है। और गोल्ड सिल्वर हो गया, ये तो रिएक्शन करेगा ही नहीं ऑक्सीजन के साथ, ये तो एकदम लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स है। इतना हो गया। अब बात करते हैं कि ये जो ऑक्साइड जो हमने बनाया है इसका नेचर क्या होगा। मेटल के जो ऑक्साइड्स बने हैं उनके नेचर के बारे में बात करते हैं कि नेचर क्या होगा इसका, मेटल का जो ऑक्साइड है उसका नेचर क्या होगा। ठीक है, अब मेटल के ऑक्साइड के नेचर जानने के लिए हम ऐसे कर लेते हैं, बी कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 और यहाँ भी ले लेते हैं। सिंपल सी एक्टिविटी है इसमें। ठीक है, ये बीकर में हम ले लेते हैं वाटर, पानी ले लेते हैं इसमें। ये हो गया पानी, वाटर। ठीक है, अब हमारे कौन कौन से ऑक्साइड बने थे। एक हमारा ऑक्साइड बना था पोटेशियम का ऑक्साइड बना था, पोटेशियम ऑक्साइड। एक हमारा बना था सोडियम का ऑक्साइड। ठीक है, फिर यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड भी बना था। ऊपर के मेटल्स हम लोग ले लेते हैं। फिर यहाँ पे जो था वो था हमारा मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब हम इसमें तो वाटर है, वाटर के साथ हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड को ऐड कर दिया, तो ये क्या करेगा, कंबाइन विद वाटर। तो प्रोडक्ट क्या बन गया, हमें पोटेशियम का हाइड्रोक्साइड मिला। यहाँ हमें क्या मिल जाएगा, ये तो वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है ना, तो यहाँ हमें मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ हमें मिल जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ मिल जाएगा हमें MgOH, मैग्नीशियम OH होल ट्वाइस कैल्शियम। ठीक है, तो ये हो गया हमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। और ये मेटल हाइड्रोक्साइड को जब हम पानी में मिक्स करेंगे तो देन व्हाट विल हैपन, दे विल प्रोड्यूस OH माइनस आयन, है ना। वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेंगे। और जो OH माइनस आयन प्रोड्यूस करता है वो क्या होता है, दैट इज अ बेस, दैट इज अ बेस। तो हम बोल सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर, इजंट इट, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। अच्छा, ये जो यहाँ KOH का जो सॉल्यूशन बना है ना, पोटेशियम ऑक्साइड प्लस वाटर किया तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया। अब हम क्या करते हैं, आप लिटमस पेपर ले आइए, क्योंकि ये बेस है ना, हम यहाँ पे कौन सी लिटमस पेपर ले आएंगे, रेड। ये बेस, पोटेशियम रेड तो बेस हुआ, हम रेड लिटमस पेपर लेके आते हैं। सब में हम लोग एक रेड लिटमस पेपर लेके आके चेक करते हैं कि हमारा जो ये मेटल का ऑक्साइड था वो एसिडिक है कि बेसिक है। तो क्या हुआ, जब जैसे हम लोग रेड लिटमस पेपर ले आए, द रेड लिटमस पेपर टर्न टू ब्लू। ठीक है, इट टर्न टू ब्लू। हियर ऑल्सो द रेड लिटमस टर्न टू ब्लू, हियर ऑल्सो द रेड लिटमस पेपर टर्न टू ब्लू। यहाँ पे भी कलर चेंज क्या हो गया, रेड लिटमस था वो ब्लू कलर में चेंज हो गया। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये जो गिवन सॉल्यूशन, जो हमारा सॉल्यूशन बना है, वो सॉल्यूशन जो है दैट इज बेसिक इन नेचर। तो मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। क्या मेटल ऑक्साइड सिर्फ बेसिक इन नेचर होते हैं, इनका कोई और नेचर नहीं होता? तो जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं वो और एक नेचर भी शो करते हैं। इनका और एक नेचर होता है जिसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होता है। इनका और एक नेचर है जिसे हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। सो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है, दे आर दोज मेटल ऑक्साइड्स विच आर बोथ बेसिक एज वेल एज दे आर एसिडिक इन नेचर। वो बेसिक नेचर भी शो करते हैं और एसिडिक नेचर भी शो करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड, ये एग्जाम्पल्स है हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स के। ठीक है, तो और ये रिएक्ट करेंगे एसिड के साथ भी और ये रिएक्ट करेंगे बेस के साथ भी। अब हम देखते हैं एल्यूमिनियम का फर्स्ट देख लेते हैं। एल्यूमिनियम जैसे कि व्हेन एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद द बेस NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है हमारा, बेस ले लिया और ये हमारा क्या हो गया, मेटल ऑक्साइड। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा हमारा सोडियम NaAlO2। हमारा प्रोडक्ट बना सोडियम एल्यूमिनेट और हमारा प्रोडक्ट बनेगा वाटर। ठीक है, तो सोडियम एल्यूमिनेट जो है, ये सोडियम एल्यूमिनेट क्या है, ये सॉल्ट है। अब एक बेस अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है वो तब एक सॉल्ट बनाता है, तो बेस रिएक्ट्स विद डैश टू फॉर्म सॉल्ट। तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड का नेचर क्या हुआ, इट इज एसिडिक इन, सॉरी इट इज एसिडिक इन नेचर। इट इज एसिडिक इन नेचर मतलब क्या है, अभी ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, अपना एसिडिक नेचर शो कर रहा है। अभी हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है,
तो अभी क्या हो जाएगा, हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा AlCl3 और H2O। फिर हमारा एक सॉल्ट बना। अब ये एसिड है, तो यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है वो कैसे बिहेव कर रहा है, वो जो है अभी यहाँ पर एक बेस की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। एसिड के साथ वो रिएक्ट करके सॉल्ट बना रहा है, तो हियर इट इज बिहेविंग एज अ बेस। सिमिलर विद द केस ऑफ ZnO ऑल्सो। जिंक ऑक्साइड ले लो। जिंक ऑक्साइड की अगर हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाएगा, सोडियम Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट बन गया हमारा सॉल्ट और बन गया साथ में वाटर। सिमिलरली यहाँ पर क्या होगा, और एक हम इसे ZnO की हम रिएक्शन करवा देते हैं एसिड के साथ। तो ये दोनों क्या हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स है, ठीक है। एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो क्या, इट विल फॉर्म ZnCl2 एंड वाटर। इट विल फॉर्म ZnCl2 एंड वाटर। जिंक क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। हियर इट इज बिहेविंग एज अ बेस। ये बेस था, हियर इट इज बिहेविंग एज एन एसिड। ये एसिड है, हियर इट इज बिहेविंग एज अ बेस, right? So you will get so this shows that aluminium oxide and zinc oxide, they are amphoteric in nature. So this was regarding the nature of the metal oxide. Now let's come to the reaction of non-metal with oxide. Now let's see how non-metal reacts with non-metal, reaction of non-metal with oxygen, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कार्बन। कार्बन प्लस ऑक्सीजन विल गिव कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है, O2, सॉरी, O2। नेक्स्ट, this is an example of this, you can see in the burning of coal, that is example of, this is burning of coal. Next, one more example we can take, that is sulfur powder, sulfur plus oxygen, it will give sulfur dioxide, it will form sulfur dioxide. Now see here, we can perform this activity, we can take some sulfur powder इन अ स्पैथुला। एक स्पैथुला में जो एक लोहे की स्पून की तरह होती है, लैब में रहेगी ये स्पैथुला, इसमें हम लोग सल्फर पाउडर लेंगे और इसे हम क्या करेंगे, एक बर्नर से हम इसे हीट करेंगे, ठीक है। हम इसे एक बर्नर से हीट करेंगे और क्या करेंगे, हम यहाँ पर वी विल टेक एन इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। यहाँ हम एक इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, और इसे इस तरह से हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक गैस लिबरेट होगी। कौन सी गैस लिबरेट हो रही है, SO2 गैस। SO2 गैस जब लिबरेट होगी तो दिस गैस विल गेट कलेक्टेड इन दिस इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट होगी। नाउ टेक दिस टेस्ट ट्यूब एंड होल्ड इट अपराइट। इसे हम सीधा पकड़ते हैं, फिर इसके अंदर तो एक गैस है ना, इसे ऐसे सीधा कर लेते हैं हम, इसके अंदर तो SO2 गैस है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, अब हमें टेस्ट करना है कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड है उनका नेचर क्या है, वो अभी हमें टेस्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है वो एसिडिक है, बेसिक है, क्या है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ एक ब्लू लिटमस पेपर ले आएंगे। क्या करेंगे हम लोग, एक ब्लू लिटमस पेपर लेके आएंगे। तो पहले हम लाएंगे ड्राई लिटमस पेपर, ये जो है ड्राई लिटमस पेपर है। तो व्हेन दिस ड्राई लिटमस पेपर कम्स इन कांटेक्ट विद दिस SO2 गैस, देयर विल बी नो चेंज, कोई चेंज नहीं रहेगा। फिर हम क्या करेंगे, इस पेपर को थोड़ा सा मॉइस्ट कर गए, हल्का से इसको हम भिगा देंगे। भिगा के फिर दोबारा जब हम इसे लेके आके SO2 के कांटेक्ट में ले आएंगे तो वी विल ऑब्जर्व दैट दिस ब्लू लिटमस पेपर चेंजेस टू रेड। ब्लू जो है वो रेड में चेंज हो गया है। अच्छा, अब वो रेड में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि हमने इसमें वाटर ऐड किया था और हमें पता है कि एक एसिड तब एसिडिक बिहेवियर शो करता है ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, क्योंकि जब वाटर के प्रेजेंस में एक एसिड जो है फ्री H+ आयन प्रोड्यूस करता है। एन एसिड प्रोड्यूसेस फ्री H+ आयन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड दिस H+ आयन इज वेरी मच एसेंशियल for the acid to show its acidic property, right? So when we bring a moist litmus paper, the blue litmus changes to red. This shows that the non-metallic oxides are acidic in nature.
This shows that non-metallic oxides are acidic in nature and metal oxides are basic in nature. Okay. So children, today we have studied the chemical property of metals and non-metals, that is their reaction with oxygen and how metal reacts with oxygen to form metal oxide, and how the non-metal reacts with oxygen to form the non-metallic oxide, and also we have seen the reactivity series. Okay. So in the next class we will study about the reaction with water, then reaction with acid, that will study in the next class. But before I wind up, I have a few questions. Here you can see the questions on the board. The first question is, what are amphoteric oxides? Give 2 examples of amphoteric oxides. Then what type of oxides are formed when metal combines with oxygen and when non-metal combines with oxygen? You have to write the nature of the oxides. Then arrange the following metals according to the decreasing order of their reactivity: copper, silver, then potassium and sodium. According to the reactivity series, you have to rearrange these metals. Then write a balanced chemical equation for the reaction aluminium when heated in air, and write the name of the product. What is the product formed when aluminium is heated in air? So children, we have this much in today's class, and we'll continue in the next class. Till then, keep practicing and keep learning. Thank you.